Hello everyone, as we have done in our previous lectures that what is federalism and features of federalism, what makes India a federal country, how is federalism practiced in India. Now we comes to the fifth part of this chapter, federalism, and that is decentralization in India. Students, as we have discussed before, that two tiers of government was there in our country that we had discussed before also. One is central level, central and state government. Because India is a vast country and it become very difficult that only two levels of government governs it. This was the reason why one more tier of government was introduced in 1992 in our country, and that is local level of government. Because as we know that India is a vast country and some of the states of our country is as bigger as the state of European countries in terms of population also. This was the reason why it is very much important to introduce one more level of government, and that is local level of government. Now we move to the meaning of decentralization. What is the meaning of decentralization? Decentralization means when some powers are taken away from center and state level of government and given to local level of government, it is called decentralization. तो decentralization क्या होता है? When power is taken away, कि जब कुछ powers ले ली जाती हैं, taken away from central government and given to local, central government and state government and given to local government it is called decentralization. As its name suggests, decentralization, that means कि सेंटर की कुछ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. जब कुछ पावर्स ले ली जाती हैं, when power is taken away from central government and state government and given to local government, it is called decentralization. कि जब कुछ पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती हैं और उन्हें किन्हें दे दिया जाता है, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Decentralization. Now this is the definition of it. What is the basic idea behind the decentralization? Next topic is idea behind decentralization. कि क्या आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन को कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करने का? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन? तो क्या सोचा गया कि it is very difficult for a central level of government to look after each and every area of our country. So this was the reason why divided into state, and then state level of government is divided into local level of government. So it was idealized, या उसको ये चीज़ सोची गई कि जो इश्यूज है लोकल लेवल के, वो इश्यूज बेस्ट वे में लोकल लेवल पर ही सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं.
और सेकेंडली लोकल पीपल को ज़्यादा पता होता है अपनी एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो ही उसका सॉल्यूशन बेटर तरीके से कर सकते हैं कि देयर आर सम इश्यूज विच कैन बी betterly sought out at local level. Local people betterly know the problems of their area and they know how to utilize the resources, where they have to put money, उन्हें कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ उन्हें सुधार करना है, वो local people को ही ज़्यादा पता होता है. On the other hand, with the help of decentralization, इस डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ज़्यादा जो हमारे लोकल पीपल हैं उनका डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन हो जाता है. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. एक बार दोबारा इसको रिपीट करेंगे कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन. क्यों सोचा गया कि एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए? बिकॉज लोकल इश्यूज कैन बी सॉर्ट आउट एट अ लोकल लेवल बेटरली. Secondly, local people betterly know the problems of the local people of that particular area. And third one is that they know how to utilize money in that particular area. And thirdly, participation improves because of decentralization. More and more people get the power to interfere in decision making. So this is the idea behind decentralization. इसी वजह से decentralization किया गया था. अगर हम आज की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो सिटीज़ हैं या हमारा जो पंचायत्स हैं वहाँ पर जो लोकल पीपल मेंबर्स बनकर आते हैं, काउंसलर्स बन के आते हैं, सरपंच बनकर आते हैं, तो उनको ज़्यादा पता होता है कि उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है. उन्हें पता होता है कि जो भी गवर्नमेंट से पैसा आएगा वो किन चीज़ों पर ज़्यादा लगाएंगे. और इस तरह से हमारे जो डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का, तो वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की वजह से. सो इट वाज recognized in constitution that local level of government must be there in a country. Many efforts were done to introduce local level of government in our country after independence and after making of constitution. Even ऐसा नहीं है कि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट 1992 में ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी. एक्चुअली यहाँ पर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में पहले सिर्फ 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल एंड स्टेट. लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी. लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी. हमारे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लोकल लेवल पर की गवर्नमेंट थी. पंचायत्स को इस्टेब्लिश किया गया था, इसके अलावा म्यूनसिपालिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उनके जो अधिकार थे, उनके जो राइट्स थे, दैट वर नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 1992 से पहले क्या सिचुएशन थी एंड 1992 के बाद क्या सिचुएशन हो गई थी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की. नाउ दैट वी आर गोइंग टू डू. लोकल लेवल बिफोर 1992 and again local level of government after 1992. जैसे मैंने अभी बताया कि पहले भी हमारे पास पंचायत और म्यूनसिपैलिटी थी, लेकिन उनके पास वो स्टेटस नहीं था जो आज है, जबकि उनके बारे में कहाँ लिख दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है. तो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बिफोर 1992 किस तरह की थी? किस तरह की थी कि टोटली डिपेंड अपॉन स्टेट्स. किस पर निर्भर थी? पूरी तरह से स्टेट्स पर निर्भर थी. नो इलेक्शंस वर देयर,
किसी तरह के कोई इलेक्शन उनके लिए नहीं होते थे। जैसी भी स्टेट गवर्नमेंट ये सोचती थी कि हमें एक म्यूनसिपैलिटी को और पंचायत को अपनी पर्टिकुलर स्टेट में वर्क कराना है, तो वो अपने तरीके से उनका इलेक्शंस कंडक्ट करा देते थे, बट प्रॉपर वे में वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते थे। नो इलेक्शंस वर देयर प्रॉपरली कोई इलेक्शन, जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन है वो बना हुआ है और उसके बाद इलेक्ट होती है लोकल लेवल और गवर्नमेंट, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वाज आल्सो नॉट देयर। सोर्सेज ऑफ इनकम और रेवेन्यू वाज नॉट देयर। तो ये भी नहीं पता था कि उनको वो किस तरह से जो इनकम है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो अपनी निकालेगी। अब किस तरह के चेंजेस आए आफ्टर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन 1992। जब 1992 में 73rd, आई हैड डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो, कि 73rd and 74th Amendment Act was introduced in our country, and after then it become mandatory to conduct election. अब क्या हो गया local level of government में after 1992? It become mandatory to conduct elections, कि प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस होने लगे। आफ्टर देन और क्या क्या चेंजेस आए, इसके अंदर क्या चेंजेस आए, दैट नाउ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट एसटीज के लिए, एससीज के लिए एंड ओबीसीज के लिए। क्या होने लगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या होने लगी, सीट्स आर रिजर्व्ड। Seats are reserved. Even women's के लिए भी 1/3 of seats are reserved for women. Elections के लिए one state election commission was established. State election commission was elected. Two state election commission was also made for the elections, for the conduction of there for the conduction of elections. Elections के conduction के लिए भी एक state election commission को elect कर दिया गया था। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स लिए गए आफ्टर 1992. Then, so this is the difference between the local level of government before 1992 and local level of government after 1992. This difference is also given in your NCERT question, कि what is the difference between it. Now hope all of you understand it. Now we have already completed the 4 topics there. और decentralization में हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, what is decentralization, what is the basic idea behind the decentralization, and local level of government before 1992 and after 1992. Now I am going to explain you the local level of government. There are 2 types of local level of government. First, rural local government and urban local government. The rural local government is also has 3 tiers. First is जिला परिषद, ब्लॉक समिति,
and Gram Panchayat. Now, Gram Panchayat is a grassroots level government, that is, rural local government is called Gram Panchayat. ग्राम पंचायत हम किसे बोलते हैं? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत. अब हाउ द ग्राम पंचायत इज constituted? One village or a group of village in a area constituted ग्राम पंचायत. कि ग्राम पंचायत जो होती है वो एक विलेज में भी हो सकती है या कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस की भी एक ग्राम पंचायत हो सकती है. दैट डिपेंड्स द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर विलेज. कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड कर देता है पहले ही कि किस तरह से पॉपुलेशन वाइज वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है विलेजेस को, और फिर उसके अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने वार्ड्स इंक्लूड होंगे, कितने विलेज उसमें इंक्लूड होंगे. एक बड़ा गांव है तो उसकी एक ही पंचायत होती है, और अगर छोटे छोटे कई गांव हैं वहाँ पर आसपास और वो अकॉर्डिंग टू स्टेट इलेक्शन कमीशन उतनी पॉपुलेशन उनके अंदर है तो वो 2-4 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती है. सो द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत, एंड one village or 2 or more village constitute the gram panchayat. अब these gram panchayat consist of, क्या consist करते हैं ये council, क्या consist करती है इनकी? all the members called panches and sarpanch as their president constitute gram पंचायत. तो उसके अंदर ये इंक्लूड होता है कि जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं वो पंच बने और फिर उनमें से क्या चुना जाता है? सरपंच को चुना जाता है, और इस तरह से ग्राम पंचायत फॉर्म होती है. देन ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ दैट एरिया. कि अगर एक गांव है, गांव के अंदर जितने भी ऐसे एडल्ट मेंबर्स हैं जो वोटिंग कर सकते हैं तो वो किसको चुनते हैं? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को चुनते हैं. इसके अलावा 2-4 गांवों की एक पंचायत है तो जितने भी उसके अंदर एडल्ट मेंबर्स हैं वो किसको चुनते हैं? ग्राम पंचायत को चुनते हैं. तो इस तरह से एक और वर्ड हम यहाँ पर सुन रहे हैं, दैट इज ग्राम सभा. अब व्हाट इज ग्राम सभा? All the adult citizen of a village which are 18 or 18 plus who has the right to vote constituted ग्राम सभा. और वो किसके मेंबर हो जाते हैं? यानी एक विलेज है, विलेज के अंदर जितने भी 18 या 18 साल से ऊपर हैं जो वोट कर सकते हैं वो किसके मेंबर बन जाते हैं? ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के. और ग्राम सभा जो होती है वो किसको चुनती है? पंच को, सरपंचेस को चुनती है. और ये जो ग्राम सभा होती है इसके कई वर्क होते हैं. क्या क्या वर्क होते हैं? कि ग्राम सभा एक तो क्या करती है कि अप्रूव करती है गांव के बजट को. जो बजट डिसाइड करता है बैठ के सरपंच, तो वहीं पर सब बैठकर उस बजट को अप्रूवल देते हैं. इसके अलावा दे लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ सरपंच. वो देखते हैं कि सरपंच सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. दे मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. सो नाउ वी कम्स टू द ब्लॉक समिति. अब ब्लॉक समिति क्या होती है? द local level government goes high up to the district level. A few gram panchayat grouped together to form or constitute block samiti. अब इसमें हम ये देखेंगे कि एक गांव की या एक से ज़्यादा गांव की ग्राम पंचायत होती है, एंड अ फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक समिति. एंड द ब्लॉक समिति मेंबर्स, द ब्लॉक समिति कॉन्स्टिट्यूट, या ब्लॉक समिति को कौन इलेक्ट करता है? द ब्लॉक समिति इज इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्राम पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया.
कि ग्राम पंचायत को चुन लिया जाता है कि मान लो कि नियर अबाउट 100 के करीब ये हमारे गांव हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद हर 5-5 गांवों के ऊपर क्या बन जाती है, एक ब्लॉक समिति बन जाती है। 100 के करीब है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि 5-5 गांवों के ऊपर या 10-10 गांवों के ऊपर, हम मान के चले कि 10-10 गांवों के ऊपर एक ब्लॉक समिति होती है। तो इस तरह से 10 ब्लॉक समितियां हो गई। अब 10 ब्लॉक समितियां हो गई। फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू कॉल्ड अ ब्लॉक समिति। फिर उसके बाद जितनी भी ब्लॉक समिति हैं, दैट मीन्स अभी हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल हमने समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है कि मान लो 100 विलेजेस हैं और 100 विलेजेस में से 10-10 विलेजेस की एक ब्लॉक समिति बन गई है। वैसे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी मैं एग्जाम्पल देकर ही समझा रही हूँ कि मान लो कि 100 गांव हैं और 10-10 गांवों की एक ब्लॉक समिति बन गई, और वो सारी जो 10 ब्लॉक समिति हैं दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ जिला परिषद, कि all the block समितिज in a district together constitute जिला परिषद। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे कि ग्राम पंचायत हो गई हमारी 1 विलेज और a few village constituted ग्राम पंचायत। फिर few ग्राम पंचायत grouped together to form a block समिति, then all the block समिति at a district level constitute जिला परिषद। वो किसको बनाती है, जिला परिषद को बनाती है। नाउ जिला परिषद क्या हुआ, क्या डेफिनेशन हुई जिला परिषद की? द डेफिनेशन ऑफ जिला परिषद इज ऑल द ब्लॉक समिति ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। द जिला परिषद, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज़्यादातर मेंबर उसके इलेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ नॉमिनेटेड भी मेंबर्स होते हैं। एंड सम मेंबर्स जो उसके, जैसे कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, एमपीज़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वहाँ का, वो भी उसका मेंबर रहेगा। इसके अलावा एमएलए भी उसका मेंबर रहेगा। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स भी उसके मेंबर्स रहते हैं। एंड चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। चेयरपर्सन कौन होता है, जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो ग्राम पंचायत, फ्यू ग्राम पंचायत, तो सबसे पहले अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज कॉन्स्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत। Few gram panchayats group together to form a block samiti. All the block samiti in a district together constitute Jila Parishad. Now we come to the other form of local government, that is urban local government. अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट हमारी कहाँ पर होती है, सिटीज़ में। एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूरल एरियाज भी होते हैं और सिटी एरिया भी होता है। तो रूरल एरिया के लिए तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अलावा जो सिटी एरिया होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसके लिए क्या बनाया जाता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी म्यूनिसिपैलिटी इज देयर इन अ टाउन। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पर होती है, म्यूनिसिपैलिटी इन टाउन and municipal corporation in big cities। big cities में क्या होती है, municipal corporation। जहाँ पर population बहुत ज़्यादा होती है जिन cities की, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है municipal corporation। इसके अलावा कम population है तो municipality को हम वहाँ पर देखते हैं। Both municipality in town and municipal corporation in big cities controlled by the elected bodies of people's representative। that means municipality जो टाउन में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको कंट्रोल कौन करता है, इलेक्टेड बॉडीज। यानी सबसे पहले जो हमारी सिटी होती है उसे वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और उस हर वार्ड से एक एक वार्ड मेंबर, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, वो चुने जाते हैं। तो इन
म्यूनिसिपैलिटीज को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? इलेक्टेड बॉडी। वो हर वार्ड से जो मेंबर इलेक्ट होकर आए हैं, काउंसलर जो इलेक्ट होकर आए हैं, वो इसको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल बाय द इलेक्टेड बॉडीज ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी लोगों के जो वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं काउंसलर, वो क्या कर रहे होते हैं? इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आफ्टर देन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन is the head of municipality in town, and mayor is the head of municipal corporation in big cities. तो here we completed urban local government. इसको एक बार और recapitulate कर लेंगे. Urban local government is of two type: municipalities in town and municipal corporation in big cities. And these municipality and municipal corporations are controlled by the elected bodies of people's representatives. जैसे हम उन्हें बोलते क्या हैं? काउंसलर्स, जो इनको चला रहे होते हैं, और उनके ऊपर एक हेड होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। म्यूनिसिपैलिटीज में कौन हेड होता है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। ऑन द अदर हैंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में कौन हेड होता है? मेयर, जो कि काउंसलर्स चुनकर आए हैं, वो अपना वोटिंग करके उसको इलेक्ट करते हैं। कुछ हमारी कंट्री के स्टेट में समटाइम इनके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं हमारी कंट्री में कुछ स्टेट्स में। तो हियर वी कंप्लीटेड द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने किया कि वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और रूरल लोकल गवर्नमेंट भी 3 टियर है, दैट इज ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज इन टाउन and municipal corporations in big city. So here we completed decentralization in India. So here your chapter federalism has been completed now. 5 topics we had covered in it. First is what is federalism, features of federalism, what makes India a federal country, how is federalism practiced in India, and decentralization in India, जिसमें हमने आज ही क्या कंप्लीट किया है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन. वी हैव डन द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बिफोर 1992, आफ्टर 1992, देन वी हैव डन द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो 2 पार्ट्स में है, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और उसके 3 पार्ट्स हैं फिर ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के क्या है? म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. So here your chapter finished.